हाँ, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ईयर के बारे में पढ़ा था। द इनर ईयर, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं थोड़ा सा बताती हूँ, देन विल स्टार्ट। इनर ईयर जो आपका है, that is a very complex structure. So there's a term, Greek term, that is labyrinth, is used for such to define such structure. So inner ear को हम labyrinth भी बोलते हैं. And okay, इसके आपने देखा था, इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक जैसा आपका आपने देखा था, external acoustic meters जो होता है, it consists of two parts, the membranous part and the bony part. Similarly here in this case it also consists of two parts, the bony labyrinth and the membranous labyrinth. तो जो outer part है, that is a bony one, and it's somewhat pipe-like structure, that means it's hollow inside. So within this hollow structure there is another similar structure, जैसे आपको बाहर दिखता है, जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल है, अंदर एक पाइप है, सिमिलर अंदर एक और छोटा सा पाइप है जिसे हम डक बोलते हैं. जैसे सेमी सर्कुलर का है तो वो डक कहलाएगा, कॉकलियर का है तो कॉकलियर डक कहलाएगा. ठीक है. सो वी हैव सेम स्ट्रक्चर, बट बिकॉज that is bounded by a membrane, so it's called as membranous labyrinth. So we have two type of structures within an ear, that is a bony labyrinth, that is the outer part, and within the outer part, this bony labyrinth is inner canal, bounded by a membrane, that is called as membranous labyrinth. Between bony and membranous labyrinth, at this area, this is the bony end, this is the inner tube. So between these two tube is another fluid that is called as perilymph. And membranous जो आपका canal था या membranous जो labyrinth है, that contains another fluid that is called as endolymph. So perilymph is between this bony and the membranous part, and endolymph is within the membranous labyrinth. Coming to, okay, next is the opening. So we have two openings, the oval window and the round window. Oval window opens in the vestibular area. We have three parts in the inner ear: the cochlea, the vestibule, and the semicircular canals. जो भी हमने पढ़ा तीन part bony labyrinth के पढ़े, that is cochlea, vestibule, and the three semicircular canal. Clearly visible है. This is anteromedial. This is somewhat posterior, and this is in the middle. So, and the membranous includes the cochlear duct, the semicircular duct, utricle and saccule. Utricle and saccule is a part of or the membranous labyrinth present in the vestibular area. So this is vestibule, and in this vestibule there is an opening called as oval window. ठीक है. Okay, एक structure दिखाते हैं clear वाला. Look, this is the piece. This is the oval window, and यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा है. This is the round window. ठीक है. Both are opening, connecting the middle ear with the inner ear. और इनकी अपनी एक अलग importance है. Like what if it is not present या कुछ भी हो, so इनकी अपनी एक importance है. They are not vestigial. They are very functional. So कमिंग टू द कॉकलिया. So सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हेयरिंग ऑर्गन के बारे में, एंड दैट इज कॉकलिया. जब हम बात कॉकलिया की करते हैं, देन इट इज अ hearing organ. Utricle saccule, that is the vestibular area, or the semicircular canals are not auditory in nature, and they are not responsible for any type of hearing. But cochlea is a structure within the inner ear that is responsible for hearing. So this is cochlea. What exactly is cochlea? Cochlea is a spiral bound a complicated structure, स्पाइरल शेप का है. अब याद रखो, कोई भी चीज स्पाइरल शेप की होगी, स्पाइरल का मतलब है चारों तरफ से लिपटा हुआ है. ठीक है. कोई भी चीज लिपटती किसकी है? किसी चीज के ऊपर लिपटी हुई है. जैसे आपने काफी पेड़ देखे होंगे, लाइक जो भी आपके क्लाइंबर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, दे नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड. अगर उनके पास स्टेम नहीं है हार्ड कि वो ऊपर हो, तो उन्हें कोई सपोर्ट चाहिए होता है. सो वी यूजुअली पुट सम स्टिक, और किसी पेड़ पे हम उसको कर देते हैं, सो दैट इट जस्ट गेट्स अप. सिमिलरली जो ये आपका स्पाइरल शेप कॉकलिया है, इट नीड समथिंग इन बिटवीन जिसके चारों तरफ ये लिपटे. So there is a bony core
ठीक है, बीच में बोनी प्लेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस। लेंथ आप देख सकते हैं, जस्ट स्मॉल लेंथ 30 mm इन लेंथ है, ठीक है। मॉड्यूलस प्रेजेंट होता है जिसके चारों तरफ कॉक्लिया होता है, यानी जिसके चारों तरफ एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है, यानी जो आपको जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जो आपका ऑडिटरी कैनाल होता है दैट इज ऑल नेवर स्ट्रेट, बट हमेशा आपको इमेजेस में, हमेशा आपको पिक्स में 3D स्ट्रक्चर में स्ट्रेट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये जो बोनी कोर है, इसमें कभी भी आपको बोनी पार्ट जो है वो कभी भी कोई नहीं दिखाएगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आपको मॉड्यूलस कभी दे। पहली बात तो इसकी लेंथ बहुत छोटी है, इसका साइज बहुत छोटा है। सेकेंड थिंग है, इसका ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा कोई फंक्शनल नहीं है। द ओनली फंक्शन इज इट प्रोवाइड स्पेस टू राउंड ओवर और स्पाइरल ओवर, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टिक लाइक बोन है जो यहाँ पे 30 mm की है, जिसके चारों तरफ कॉक्लिया जो है वो टर्न टर्न करके ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग में रैप कर जाएगा। मॉड्यूलस के पीछे या मॉड्यूलस के नीचे, क्योंकि कोई भी चीज़ खड़ी हुई है एंटीरो, ये खड़ी है ऐसे ऊपर नीचे करके, ठीक है, ऐसा आपको दिखता हम हमेशा ऐसे, वरना ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ, दिस इज द पोस्ट सुपीरियर पार्ट, ठीक है। सो हमने इसको ऊपर से सुपीरियर व्यू देख रहे हैं। अगर हम इसे सामने से देखेंगे सो नीचे से ऊपर तक एक आपको बोनी प्लेट मिलेगी जिसे हमने बोल दिया मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जो होती है इसी के नीचे पाया जाता है इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स। हमने पढ़ा था एक्सटर्नल अकाउस्टिक, ऐसे ही एक होता है इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स। इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स का काम क्या होता है? इंटरनल अकाउस्टिक मीटर एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व एंड फेशियल आर्टरी, ये सब जो है, और सम ब्लड वेसल्स है से ये सब पास करती हैं। एक तो फेशियल नर्व करेगी, नर्व्स में फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व पास करेगी, दैट इज ऑडिटरी नर्व, एंड सम ब्लड वेसल्स पास थ्रू इट। सो वो इसी के नीचे, इसी के पास एक बोनी कैनाल है, so that is internal acoustic meters। स्पाइरल लेमिना क्या होता है? स्पाइरल लेमिना देखो, ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, जब हम पोल पे चढ़ते हैं, स्पेशली जब फौजी लोग जो होते हैं, जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो इनके पास एक ना बहुत लंबा सा पोल देते हैं। उन पोल पे साइड साइड में कहीं कहीं पे कुछ एजेस बनाए हुए होते हैं, सो दैट बोर्ड पे वॉक करके लाइक उस पर चढ़ सके आराम से। सिमिलरली स्पाइरल लेमिना वो कुछ एजेस हैं जिसके मॉड्यूलस के ऊपर, ठीक है, आपके मॉड्यूलस जो आपका एक स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट बोनी कोर था, उसके थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ एजेस प्रेजेंट है, सो दैट जो आपका ये कॉक्लिया है ये आसानी से उस पर रैप हो सके, ऊपर या नीचे डिस्प्लेस ना हो। फॉर दैट, टू प्रिवेंट दैट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंजरी और ड्यू टू एनी रीजन, प्रेशर, ठीक है, अब इंजरी में प्रेशर लगेगा, हो सकता है वो डिस्प्लेस रहे, टू प्रिवेंट दैट स्मॉल, मतलब कुदरत ने आपको पहले से स्पाइरल लेमिना देते हैं। सो व्हाट स्पाइरल लेमिना? स्पाइरल लेमिना कुछ नहीं है, ये बोनी एजेस हैं जो मॉड्यूलस में प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे, जहाँ पे आपका जो कॉक्लिया है वो टर्न बनाता है। Then coming to the tons, so there are 2.5 tons and 2.5 tons होते हैं both of cochlea and both of spiral lamina। तो जबकि spiral lamina है, जैसे अगर आप देखेंगे तो दो सर्कल बनते हैं, एक कंप्लीट सर्कल यहाँ से देखा जाए तो वन कंप्लीट सर्कल, देन वी हैव टू कंप्लीट सर्कल एंड देन वी हैव अ हाफ सर्कल, दैट इज 2.5 टर्न्स बनाता है कॉक्लिया, एंड सेम इज द केस विद द स्पाइरल लेमिना। कमिंग टू द कॉक्लिया की हम एनाटॉमी बात कर रहे हैं, तो जो कॉक्लिया का बेस होता है, दिस इज कॉल्ड द बेस, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द बेस पार्ट, देन वी हैव द मिडल पार्ट हेयर एंड देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज द एपेक्स, ठीक है। सो जो आपका थिक बेस होता है दैट इज थिक, और फिर ये धीरे धीरे थिन होने लग जाता है जैसे जैसे आपका कॉइल जो है वो बेस से एपेक्स की तरफ जाएगा। इसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज द बेस पार्ट जो शुरुआती पार्ट है, देन वी हैव वन मिडिल पार्ट एंड देन वी हैव एपेक्स। एज सच एनाटॉमिकली से नहीं डिफाइन करते हैं, ये हमने सिर्फ डिफाइन किया है फंक्शनल, कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी होती है, इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि दैट वाज डिवाइडेड इनटू बेस एंड मिडिल एंड द एपेक्स पार्ट। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, द बेसल पार्ट जो शुरू का है, then we have the coiled area that is the middle part, and then we have some part of apex। so जो आपका बेस था that is thicker, while जैसे हम आगे चलेंगे it becomes thinner। so जब आप इस तरह से देखते हैं, this is a bony canal,
इस बोनी कैनाल में बीच में आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ था या कैनाल, सॉरी, दिस इज अ बोनी लेबिरिंथ एंड देन वी हैव अ कैनाल इन बिटवीन दैट इज मेम्ब्रेनस इन नेचर, सो वी कॉल इट। सो आपको देखेंगे आप का जो कंप्लीट कॉकलिया है, अगर आप इसको डाइसेक्ट करके देखेंगे, सो विल सी दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक ऊपर का पार्ट है, देन बीच में एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, फिर एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, एंड देन वी हैव, सो दिस part is called as scala vestibuli. This is called as vestibuli because it is continuation with the vestibule. This is a vestibule area. ये वेस्टिब्यूल एरिया से कनेक्टेड होता है, कंटिन्यूड होता है। यहाँ पे ओवल विंडो है, वहाँ से एग्जैक्टली देखा जाए तो ये शुरू होता है। So it's named as scala vestibuli. So this, the upper part of the cochlea is called as scala vestibuli. This complete upper part, ठीक है, this is complete estimate, that is called as scala vestibula. Now coming to the scala tympani, जो lower part है, ठीक है, lower part is called as scala tympani. Why it is called as scala tympani? This is called scala tympani because ये जो है ये स्टार्ट करता है या फिर यहाँ पे कि ख़त्म होता है, फिर ये स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है, फिर ये पूरा अंदर आया अंदर आया अंदर आया अंदर आके एक पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे ये दोनों सेपरेटेड नहीं होते हैं बाय मेम्ब्रेन। अभी ये दोनों जो है बाय सेपरेटेड है एक मेम्ब्रेन से। एक मेम्ब्रेन ये रही जो सेपरेट करी है, एक मेम्ब्रेन ये रही जो सेपरेट करी है, बट एट दिस पॉइंट दैट द एपेक्स एरिया कंप्लीट, ठीक है, इस एपेक्स एरिया पे the two cavities are interconnected, ठीक है, so that point at which the two cavities are interconnected, of which two cavities, scala vestibuli and scala tympani, that is called as helicotrema. So what is exactly helicotrema? Helicotrema is a point at the apex of the cochlea that connects the scala vestibuli to the scala tympani. So जो आपका पेरिलिम्फ जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था इधर से, वो यहाँ पे फ्लो करते 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 आपके फिर नीचे इधर भी आ जाता है। सो स्कैला वेस्टिबुलाई एंड स्कैला टिम्पैनी, बोथ द कैविटीज कंटेन्स पेरिलिम्फ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट इज कॉक्लियर क्यूपुला, उसे बोलते हैं, देख सकते हैं, तो जो अपेक्स एरिया है वो थोड़ा सा जो है मतलब बिकॉज इट इज ओपन एंड ऑल, सो इट्स कॉल्ड एज अपेक्स ऑफ द कॉक्लियर इज कॉल्ड एज कॉक्लियर क्यूपुला। जस्ट गिव मी अ मिनट। छोड़िए छोड़िए, ठीक है। सो दिस इज कॉक्लियर क्यूपुला। अभी फोन आएगा तो फिर से काट दीजिएगा, फोन आएगा तो काट दीजिएगा, मेरा नेट खत्म चला जाता है। ओके, ठीक है। सो इतना आपको पता चल गया कि द अपर बोनी पार्ट इज स्कैला वेस्टिबुलाई, द लोअर बोनी पार्ट इज स्कैला टिम्पैनी, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स above and below, and in between there is another cavity that is called as scala media. And this scala media contains endolymph, while the scala vestibuli and tympani contains the perilymph, and they are not interconnected at any point except at one point that is called as helicotrema, that is the apex area um, where both the cavities meet. ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर जो आप हमेशा पढ़ते हैं ईयर में, जब हम इनर ईयर की बात करते हैं, सो वी आर कमिंग विद दिस इज द एग्जैक्ट, और आई मस्ट से दिस इज द फंक्शनल पॉइंट ऑफ हेयरिंग ऑर्गन। यहाँ पे ये मेन एग्जैक्टली देखा जाए तो ये ट्रांसड्यूसर है, जो आपका अभी तक वाइब्रेशनल वेव्स आ रही थी, जो वाइब्रेशन थे, उसे अब ये एक्शन पोटेंशियल में जो कन्वर्जन होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट अकर्स हेयर। सो इनर ईयर का जो कॉक्लिया है वो इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्कैला वेस्टिबुलाई एरिया, दिस इज द स्कैला टिम्पैनी एरिया। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो हम एक पढ़ते हैं ना, दिस इज जस्ट वन पॉइंट, ठीक है, ये आपको सामने से दिख रहा है, वरना अगर हम देखेंगे तो दिस कंप्लीट एक लंबा सा स्कैला वेस्टिबुलाई और ऐसे कंप्लीट लंबा सा स्कैला टिम्पैनी एंड द मीडिया है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं हमने यहाँ से काटा और इसको सीधा करके देखने लग गए, सो आपको जो दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। सो अबव वी सेड वी हैव scala vestibuli, then downward we have scala tympani, and in between is the scala media. So जो membrane that separates the scala vestibuli from the scala media is called as vestibular membrane. Vestibule में वेस्टिबुलर पार्ट था, तो इसको नॉर्मली बोलते हैं वेस्टिबुलर कोने, लेकिन इसका एक अलग से नाम होता है, दैट्स कॉल्ड एज रीजनस मेम्ब्रेन। So Reisner's membrane or vestibular membrane is a membrane that separates the scala vestibuli from the scala media. Similarly, we have a very, very important membrane that is called the basilar membrane.
Vestibular इतनी important नहीं है, but basilar is very important. So below, the membrane that separates the scala tympani from scala media is called as basilar membrane. So this area is the basilar membrane. This red area, small red area, is a basilar membrane. Why this is important? Because it contains a structure. It give place to a structure that is called as organ of Corti, which is a functional unit of hearing. ठीक है, हर चीज़ की एक फंक्शनल यूनिट होती है. हार्ट की है कार्डियक सेल, नर्वस सिस्टम की है न्यूरॉन्स. सिमिलरली हेयरिंग के लिए या ईयर के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. सो ये जो आपको स्ट्रक्चर छोटा सा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दैट इज प्रेजेंट इन द स्केला मीडिया. ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट ओवर द बेसिलर मेम्ब्रेन. जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. ओके, सो बात करते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि क्या होता है साउंड वेव्स हमेशा फ्रीक्वेंसी में आता है. सो जब भी आप ग्राफ पढ़ेंगे या हमने कभी भी कोई ग्राफ आप देखेंगे तो एक बार एक लाइन ऊपर जाती है, एक लाइन नीचे आती है, फिर एक ऊपर जाती है, फिर एक नीचे आती है. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी टर्म हम किसको बोलते हैं? इस कंप्लीट ग्राफ में व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, हम दो चीजें पढ़ेंगे. व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. कोई बताएगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? This is important just to understand, और ज़्यादा कुछ नहीं. Okay, let me draw it for you people. So this is x-axis, this is y-axis, and ऐसे ना करके नीचे भी करते हैं. ठीक है, so we have a sound wave here. This is sound wave, this is sound wave, this is sound wave. तो दिस इज साउंड वेव है आपकी, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन दिस? ठीक है, फ्रीक्वेंसी है कितनी जल्दी फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आ गई. दिस इज फर्स्ट वेव, यहाँ से शुरू की यहाँ खत्म हो रही है. दिस इज सेकेंड वेव, यहाँ से शुरू की यहाँ खत्म हो रही है, एंड सो ऑन. सो जो एक वेव के बाद दूसरी वेव आती है दैट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक वेव के बाद जो दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, फिर चौथी वेव आई, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या चीज डिफाइन करती है? फ्रीक्वेंसी डिफाइंस द पिच ऑफ द साउंड. पिच ऑफ द साउंड, जैसे लेडीज की वॉइस होती है, मेल्स की वॉइस, देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस इन द पिच, देयर इज अ डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी. सेकेंड, अगर कोई इंसान ड्रम बजा रहा है और एक इंसान फ्लूट बजा रहा है, there's a difference in the voice. Why there is a difference? There is difference because दोनों की जो frequency है that is different. थर्ड बोलते हैं आप शाम के वक्त बाहर हैं, चिड़िया हैं, बहुत सारी चिड़िया, चिड़िया मतलब नॉट छोटी वाली, सारी जितनी भी चिड़िया हैं वो बोलती हैं, चहकती हैं. ठीक है, सो आप सबके वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेते हो या अलग अलग सुनते हो? आप बोलते हो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. हाउ डू यू डू दैट? इट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी. हम उसे कैप्चर कर सकते हैं, हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वेदर इट इज ड्रम, वेदर इट इज फ्लूट, वेदर इट्स अ मेल, इट्स अ फीमेल और अ चाइल्ड. ऐसा होता है. सो दैट डिफरेंस इन द वॉइस इज ड्यू टू फ्रीक्वेंसी. हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, इस तरह से ही मैटर करेगा. ठीक है, सो आपका जो बेसिलर मेम्ब्रेन थी जो आपने देखी थी, सॉरी बेसिलर मेम्ब्रेन, ओके, जो आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स. उस पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेयर सेल्स. सो जो आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है उसका जो बेसल एरिया था, मैं आपको वहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर दूंगी. बेसल एरिया जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी से स्टिमुलेट होती है. हायर फ्रीक्वेंसी मतलब लेडीज वॉइस, पिचिंग, जो बहुत ही क्या बोलते हैं नोकीली टाइप से होती है, कानों को चुभती है. ठीक है, दैट इज हायर फ्रीक्वेंसी वॉइस. दैट इज रिसीव्ड एट व्हाट लेवल? एट द बेसल पार्ट. जो आपकी बैसिलर मेम्ब्रेन का बेस वाला पार्ट है, बेस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, बेस, मिडल एंड एपेक्स. सो उसी तरह से लेके जाएगी. जो बेसल पे जो बैसिलर मेम्ब्रेन होगी दैट विल गेट एक्टिवेटेड, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एट दैट लेवल विल गेट एक्टिवेटेड और विल रिकॉग्नाइज दैट वॉइस. ठीक है, सो फिर आती है मिडल वॉइस, फिर आती है लो फ्रीक्वेंसी वॉइस. सो सिमिलरली मिडल इन द मिडल वन एंड द लो फ्रीक्वेंसी वॉइस एट द एपेक्स रीजन. ऐसा क्यों होता है वो हम अभी पढ़ेंगे चल के. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट डज फ्रीक्वेंसी डिफाइंस? फ्रीक्वेंसी डिफाइंस
one thing, and that is the pitch of the sound. Second is the amplitude. What is amplitude? This is amplitude. यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कितना ऊंचा जा रहा है. This one is amplitude. Here in this case थोड़ा सा amplitude आपका और बढ़ गया. आजा नीचे. कितना गंदे सा आया है. This ठीक है. So this one is amplitude. Sorry यहाँ तक. ठीक है. So this is amplitude. What does amplitude defines? Amplitude defines the loudness. It's not always like कि ladies आराम से बोलती हैं. Sometimes they shout. So वो जो shouting वाली बात है, that is the amplitude. Frequency same होती है, but amplitude changes. So what does amplitude defines? Amplitude defines the loudness, while that frequency defines the pitch. अभी आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन थी, ठीक है. एग्जैक्टली यहाँ बेसिलर मेम्ब्रेन को डिफाइन ना करके, just give me a minute. Okay, here this is the basal part. ठीक है. This is the basilar membrane. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये lower part जो है, ठीक है, ये lower part is the basilar membrane. So lower part of basilar membrane का जो basal part था, that is this up to this area or somewhat here. ठीक है. ये functionally है, anatomically कुछ नहीं है कि इतना हम length दे देंगे. ठीक है. So the basal part है that receives higher, that gets activated by high frequency waves. Then the middle one by the middle waves, and then the apex by the low frequency waves. ऐसा देखा गया है कि जो आपके बेसल पार्ट पे जो आपका बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, that have short fibers and there is stiffness. The elasticity is very less. But at the apex पे elasticity is very high and the fibers are long. The hair cell fibers are very long. ठीक है. सो क्या होता है, जैसे ही छोटी सी साउंड वेव आई, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वेव भी आपकी क्या होता है, कोई भी चीज ढीली है तो वो लटक रही है, ठीक है, तो उस पर अगर फूंक मारोगे तो वो आसानी से हिल जाएगी. लेकिन कोई चीज बहुत टाइट है तो वहां पे आप फूंक मारिए या आप उसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो उतनी आसानी से नहीं हिलेगी. ठीक है. सो क्या होता है, जो कि कुदरत ने कितने अच्छे से बनाए देखने की जरूरत है कि जो आपको यहाँ पे स्टिफ एरिया था, बेसिलर मेम्ब्रेन का जो स्टिफ एरिया था, उसको कह दिया कि तुम लार्ज फ्रीक्वेंसी वेव्स जो थे, हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है उससे डील करो. सो दैट हायर फ्रीक्वेंसी वेव होगी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा. वाइब्रेशन का जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा. बट जब आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लूज है, तो क्या होता है, थोड़ी सी ही फ्रीक्वेंसी वेव आई, लो फ्रीक्वेंसी वेव पे भी ये रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है. सो कुदरत बहुत सोच समझ के बनाया अल्लाह पाक ने सब कुछ. सो जो आपका बेसिलर एरिया है, बेस एरिया है, वहाँ पे आते हैं हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स, देन मिडिल में मिडिल फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड लोअर में लोअर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दैट एग्जैक्टली वी ह्यूमन hears, that is between 20 hertz to 20,000 hertz. It's a normal frequency that we can hear. बट जब बात करते हैं कन्वर्जेशन की, वी यूजुअली कन्वर्स, हम बातें करते हैं, सो उसकी एक अपनी भी फ्रीक्वेंसी है. सो उसकी फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है अप्रॉक्स 1500 to 4000 hertz. So this is the frequency that we usually hear while we are talking, while we are conversing. But up to from 20 up to 20,000 hertz, this is the wavelength, this is the frequency waves that we can hear. ठीक है. सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. सो दिस रीजन दैट कंटेन्स द हेयर सेल्स एंड द सपोर्टिंग सेल्स एंड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली, इसके अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है. दिस कंप्लीट दिस स्कैला मीडिया के अंदर जो भी सेल्स होते हैं at the basilar membrane, attached to the basilar membrane is called as organ of Corti, which is responsible for transduction purpose. Then higher frequency मैंने आपको बताया बेस पे होता है. They have stiff fibers and less elasticity and short fibers. Similarly, जब हम जैसे ही आगे मूव करते जाएंगे, like at the apex we have loose fibers and we have that means that makes the membrane more elastic and gets stimulated by low frequency waves. यानी 20 की frequency waves जो है that will stimulate the organ of Corti at apex region. At 20,000 hertz बेस पे मिलेगा. यानी जो बेस अगर यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से कंप्लीट ये बेस नहीं है. ठीक है. इसमें अंदर पीछे की तरफ चले जाओगे तब आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, दिस इज द बेसल एरिया, देन वी हैव मिडल एंड द
have a apex area. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की. हम और क्लियर आ जाते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन की. वी हैव स्मॉल बेसिलर मेम्ब्रेन ग्रीन कलर्ड, then we have hair cells, these orange colored. We have nerve fibers arising from this, and we have tectorial membrane. So start करते हैं एक छोटे ऊपर से. At the upper part of the hair cell, these are hair cells, ठीक है, 1 2 3, and then this is the hair cells. So hair cells के ऊपर एक proteinaceous sheet present होती है. That proteinaceous sheet is called as reticular lamina. This reticular lamina एक membrane like बनाती है, but exactly it's not a membrane like because it is present only at the level where there is hair cells. ठीक है, hair cells जहाँ जहाँ present है सिर्फ वहीं पे एक proteinaceous sheet होती है ऊपर, ठीक है, apex of the hair cells पे, that is called as reticular lamina. This reticular lamina is connected to the basilar membrane. ये जो आपकी basilar membrane थी that was separating the media from the tympani, this basilar membrane is connected. They are connected by a specific type of cells, not exactly cells, but they are somewhat biconcave. जो आपका कौन सा स्ट्रक्चर था RBCs का, similarly they are biconcave. So these are called as either they are called as pillar cells or rods of Corti. This is either pillars of Corti or rods of Corti. यानी पिलर की तरह एक्शन इसका पिलर का है. So अभी हम पढ़ेंगे कैसे है पिलर का. So they are acts as a pillar or a rod that's connect the reticular lamina with the lower part, that is the basilar membrane. So basilar membrane और reticular lamina को एक specific type of cell जो है वो connect करते हैं, that is called as pillar cells or rods of Corti. And in between there is a tunnel, so we call this tunnel of Corti. Coming to the hairs of the cells, there are two type of hair cells. One is the inner cell and there is an outer hair cell. Inner hair cell and outer hair cell. आप देखेंगे inner hair cell जो होता है वो बेसल की तरफ होता है और सिंगल रोड होता है, यानी सिर्फ एक सिंगल सेल है जो कंप्लीट रो है, क्योंकि ये कंप्लीट रो लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अगर आप यहाँ पे आपको याद हो, दिस इज अ कंप्लीट रो, ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट रो लाइक स्ट्रक्चर पीछे तक जा रहा है. सो यहाँ पे एक सेल होगा दैट इज इनर हेयर सेल्स जो बेसल की तरफ मूव करेगा, यानी इस तरफ लेटरली मूव करेगा. पहले आपका होगा इनर हेयर सेल, देन यहाँ पे आपका होगा आउटर हेयर सेल. इतना याद करने की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस याद रखो दो टाइप ऑफ हेयर सेल्स होते हैं, इनर हेयर सेल एंड आउटर हेयर सेल. इनर हेयर सेल इज सिंगल वाइल आउटर हेयर सेल इज 3 in number. तो आपको एक लेयर सेल की यहाँ पे जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज इनर हेयर सेल, और यहाँ पे 3 सेल्स की लेयर रोज जाएंगी, रोज बनेंगी, दैट इज the outer hair cells. So they are present, this is at the base level. जो आपका बेस था उस साइड प्रेजेंट होता है inner one, and जो दूसरी तरफ होगा that is toward the apex या फेसिंग, मतलब कैसे समझाऊँ आप लोगों को. यहाँ पे हम बात करते हैं तो पहले यहाँ पे आपका आएगा एक, अगर आपने खोला यहाँ पे तो पहले जो इस साइड आपको फेस करता हुआ मिलेगा दैट विल बी द इनर हेयर सेल, और जो आपको अंदर की तरफ जाके मिलेगा दैट विल बी द आउटर हेयर सेल. इनके लिए बहुत स्पेसिफिक बात ये है, जो आपका इनर हेयर सेल होता है, ठीक है, इनमें से नर्व फाइबर्स अराइज करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द ट्रांसडक्टर्स. सो इनमें से जो नर्व फाइबर्स अराइज करेंगी, ठीक है, दैट विल फॉर्म द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. तो एक चीज़ बहुत ही जो शॉकिंग है वो ये है कि जो इनर हेयर सेल्स होते हैं, यानी सिंगल लेयर जो है इनर हेयर सेल्स है, 95% ऑफ फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम inner hair cells, while only 5% comes from outer hair cells. In spite of increase in number, of course ये 3 रो में present हैं, अगर ये 300 हैं तो ये सिर्फ 100 हैं, ऐसा नहीं है, they are more in number, but just for example if they are 100 in number, inner cell 100 है, the outer hair cells जो हैं they are 300. In spite of that, जो इसमें से nerve fibers निकलते हैं that is constitute 5%, only 5% of the cochlear nerve. एंड इनर हेयर सेल की बात करें तो इट कंस्टिट्यूट 95% ऑफ द फाइबर्स. हेयर सेल्स के ऊपर, ठीक है, देर आर सर्टेन लिगामेंट्स दैट अटैच द हेयर सेल्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक है, so this is टेक्टोरियल membrane, this is hair cell connected by some ligaments called as suspensory ligaments. देन आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स ऑफ क्लॉडिकस, सेल्स ऑफ हैंसेंस, ठीक है, ये सारे सेल्स हैं, दे आर सपोर्टिंग इन नेचर. ये
इनका कोई ऑडिटरी फंक्शन नहीं है, इनका कोई ट्रांसडक्शन काम नहीं है, दे जस्ट सपोर्ट दी सेल्स। और ये मोस्टली जो है ये सपोर्ट करते हैं आपके इनर हेयर सॉरी आउटर हेयर सेल्स को। सो आउटर हेयर सेल्स मोस्ट ऑफ देम जो ये हैंसन है, क्लोडिकस है, ये सारे किसकी हेल्प करते हैं, दे सपोर्ट, दे हेल्प द आउटर हेयर सेल्स। ठीक है, सो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल जस्ट कंसर्न विद द हेयर सेल्स कि एग्जैक्टली इनर हेयर सेल एंड आउटर हेयर सेल कैसे होते हैं। देखो इनर हेयर सेल का ये एक स्ट्रक्चर, मैंने एक हेयर सेल लिया है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हेयर सेल है, इसमें ऊपर की तरफ कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यू नो व्हाट इज सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सो जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं स्टीरोसीलिया। और एक उसमें सिंगल एक बड़ा सा सीलिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज काइनोसीलिया। उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, दैट इज काइनोसीलिया। सो स्टीरोसीलिया, द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं दैट आर कॉल्ड स्टीरोसीलिया। जो एक लॉन्ग सिंगल सीलिया होता है दैट इज लार्ज इन साइज, लॉन्गर, दैट इज कॉल्ड एज काइनोसीलिया। एट द टिप यानी इन सीलिया के टिप्स पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चैनल्स मतलब गेट कुछ प्रेजेंट है, पोटेशियम गेट्स एंड कैल्शियम गेट्स ये प्रेजेंट होते हैं। एंड ये गेट्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक प्रोटीन लेयर के, दैट इज कॉल्ड एज टिपलिंग्स। यानी टिप्स को लिंक कर रहा है, सो इट्स कॉल्ड एज टिपलिंग्स। ठीक है, होता क्या है, जब भी आपकी कोई साउंड अराइव करता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, सो वो बोल रही हूँ वो आपके कानों में कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, वो आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, आके किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने वाइब्रेट किया, मेलियस उससे अटैच था, मेलियस इनके स्टेपीज वाइब्रेट करके आएंगे, और जो आपका ओवल विंडो था वहाँ पे वाइब्रेशन आएगा। वहाँ पे वाइब्रेशन आता है तो वो वाइब्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे स्कैला वेस्टिबुलाई से कनेक्टेड है। तो स्कैला वेस्टिबुलाई में क्या था, पेरिलिम्फ था, तो पेरिलिम्फ के अंदर एक वाइब्रेशन आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कभी भी आप पानी को टच करेंगे तो उसमें एक वेव बनती है। ठीक है, सिमिलरली वॉइस से भी वेव बनती है। तो जो वो वॉइस वहाँ पे आ रहा है, जो वहाँ पे फिजिकल अभी वाइब्रेशन हो रहा था, अभी वो यहाँ पे पानी के अंदर आ जाएगा, दैट इज द पेरिलिम्फ के अंदर आएगा। जब वो पेरिलिम्फ के अंदर आया, पेरिलिम्फ से होता होता वो नीचे हेलिकोट्रीमम में आएगा, हेलिकोट्रीमम से वो स्कैलर टिम्पैनी एरिया में आ जाएगा। टिम्पैनी एरिया में दिस इज द बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन को आके मूव करेगा। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन को जब आके मूव करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो रॉड्स ऑफ कॉर्टाई थे और रेटिकुलर लेमिना था, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो जब भी कोई मूवमेंट होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। कौन, बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर जाएगा, रॉड्स ऑफ कॉर्टाई ऊपर जाएंगे, रेटिकुलर लेमिना, तो तीनों चीजें मिली हुई हैं, तो कोई भी धक्का अगर इस पे आके लगेगा तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा। जैसे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऊपर जाता है, सीलिया मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर आपका ऊपर जाएगा, स्टीरोसीलिया जो है ये आपके मूव करेंगे। स्टीरोसीलिया जो छोटे वाले सीलिया है दैट विल मूव टुवर्ड काइनोसीलिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। इफ स्टीरोसीलिया मूव्स इन काइनोसीलिया मूवमेंट टुवर्ड्स काइनोसीलिया, तो क्या होगा, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो ये जो आपके टिपलिंग्स थे ये क्या काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे ढक्कन का, ठीक है, कैप का काम कर रहे थे। सो ये स्ट्रेच कर जाते हैं, इनके स्ट्रेच होने की वजह से ये जो चैनल्स थे दे गेट ओपन। जैसे ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम आयन क्यों अंदर आना शुरू हो जाता है, हमने पढ़ा था एंडोलिम्फ यहाँ पे होता है, एंडोलिम्फ के अंदर क्या होता है, आर रिच इन पोटेशियम आयंस। वाई दे आर रिच इन पोटेशियम आयंस, ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ। दे आर रिच इन पोटेशियम आयंस, आप ये देखेंगे यहाँ पे एक साइड में, ठीक है, दिस इज अ टनल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, राउंड राउंड होते हैं पूरे। सो इसके जो लेटरल साइड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्राया वेस्कुलरिस। स्ट्राया वेस्कुलरिस जो होता है, इट सिक्रीट्स पोटेशियम इनटू द स्केला मीडिया, और स्केला मीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोलिम्फ। सो एंडोलिम्फ इज रिच इन potassium ion. This potassium ion enters these hair cells. These hair cells, यहाँ पे जो हेयर सेल्स है इसके अंदर एंटर कर जाएगा। कब एंटर करेगा, स्पेसिफिकली इनर सेल की बात कर रहे हैं। इनर सेल के अंदर ये जो है आपका अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम आयन, जब भी पोटेशियम आयन इज पॉजिटिव आयन, पोटेशियम आयन जाता है, कभी कभी यहाँ पे कैल्शियम आयन भी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
जब भी पोटेशियम आयन या कैल्शियम आयन अंदर आना शुरू होगा तो यहाँ पे जो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा दैट विल इंक्रीज, राइट. सो दिस कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ दिस हेयर सेल. डीपोलराइजेशन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करना, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बढ़ाना. बिकॉज पोटेशियम इज पॉजिटिव आयन एंड कैल्शियम इज अ पॉजिटिव आयन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोडियम हेयर. इसको याद रखो, यहाँ पे कोई भी सोडियम आयन का कनेक्शन या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं है. यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ दो चीज़ों का, दैट इज द पोटेशियम आयन एंड द कैल्शियम आयन. वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे. जैसे पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा डीपोलराइजेशन. दिस डीपोलराइजेशन कॉजेज दिस इंक्रीज इन डीपोलराइजेशन होगा. जो कैल्शियम आयन होते हैं वो एक तो डीपोलराइजेशन में ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स. दैट न्यूरोट्रांसमीटर इट कंटेन इज कॉल्ड एज ग्लूटामेट. So it will help the calcium ion. In presence of calcium ion, these vesicles moves to the periphery, not periphery, that moves towards the basilar membrane, and at basilar membrane attach कर जाते हैं, fuse कर जाते हैं, and secretes out what? Secretes out the neurotransmitter that is glutamate. टाइम खत्म होना है. प्लीज़ एक बार आप लोग फिर से क्या कहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा. आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस. आई हैव अ रीज़न, वो भी मैं बता दूंगी मैं से क्यों कंप्लीट करना चाहती हूँ. So please do attend, join again.